Welcome students to the next video. On Wednesday we had explained some topics and this is the Thursday when we are going to explain prime numbers and composite numbers and the last exercise of the last chapter, the first terminal which I had explained. Okay, last topic prime number and composite number. ओके मैंने प्राइम नंबर अभी पिछले वीडियो में ही बताया कि ऐसे नंबर जिनके पास एक्जैक्टली टू फैक्टर्स हो, एक वन और एक वो खुद। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिखे हैं, मैंने बहुत सारे 60 तक 1 to 60 जितने प्राइम नंबर्स आते हैं सबको एग्जांपल में लिया है। आपके बुक में 1 to 100 जितने प्राइम नंबर्स आते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो वो आपको याद कर लेने हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 and 59. These are the prime numbers which have only two exact factors. One is 1 and itself. Okay, two factors are there. What are composite? Which are not prime, they are composite. Means a number that has more than two factors. एक ऐसे numbers जिनके पास हाँ स्टूडेंट्स, तो हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता है। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और वो नंबर्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते के साथ पहचान लेंगे कि ये प्राइम है और देखते के साथ पहचान लेंगे कि ये कंपोजिट है। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पूछता है इज 49 अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 2.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यस और नो, बस इतना कहना है, क्या 49 कंपोजिट नंबर है? आपको बस इतना सोचना है कि क्या 49 किसी के टेबल में आता है, तो जवाब है यस। 49 comes in the table of 7. 7 sevens are 49. Then we can say it yes. Yes, it's a composite number because other than 1 and itself, it has a third factor which is 7. Okay, so yes. Now, is 67 a composite number? 67 is not a composite number, it's a prime number which has only two factors, 1 and itself means 67. So here we can say no, 67 is not a composite number. Now here it's telling that is 59 is a prime number. So we had written here that 59 in the example of prime numbers, 59 has only two factors, exact two factors. So 59 is a prime number. Yes, 59 is a prime number. Is 75 is a prime number? No. देख के ही पता चला स्टूडेंट्स ये 5 के टेबल में आएगा, एक थर्ड इसका फैक्टर है। So 75 is not a prime number. No, it's not a prime number. So इस तरीके से ऐसे कुछ और 3-4 क्वेश्चंस आपके हैं जिसको आपको यस नो करना है स्टूडेंट्स, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, so these are the examples for exercise 2.9. ओके, अब मैं अगला सेटअप कर रहा हूं। So students, now we are going to learn about the fill in the blanks which had given in the exercise 2.9. So the first fill in the blanks is the smallest prime numbers. The smallest prime number is 2. Okay, सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि 2 होता है। The smallest composite number is 4. मतलब 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर छोटा नहीं है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है। The smallest prime number and the smallest composite number are 2 and 4 respectively. Prime numbers between 1 and 25. 1 और 25 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are the prime numbers. You have to learn that because there is no method. There is no method for the finding of these numbers. You have to only learn this. Two prime numbers between which differ by 2. Two prime numbers which differ by 2. मतलब ऐसे prime numbers जिनके बीच का difference 2 हो. So students, there are so many prime numbers. Here we can say that 7 and 5. That means 7 and 5. Okay, if you take a difference between them, it will be 2. So differ by 2 and these both are
prime numbers. The prime numbers which differ by 2 means whose difference is 2. When we subtract it will be 2. So 7 minus 5 is equal to 2. Okay. The two consecutive prime numbers are consecutive only. A pair of prime numbers that are consecutive means एक के बाद एक आते हैं, वो prime number सिर्फ एक ही है, 2 and 3. 2, 3 स्टूडेंट्स एक के बाद एक आते हैं, 2, 3 एंड ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब ही यही हुआ कि एक के बाद एक, दो एकदम पड़ोसी जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए. एकमात्र ऐसा यही है कि 2 और 3 एकदम एक के बाद एक आने वाले दो नंबर्स जो प्राइम है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स. सम ऑफ द प्राइम नंबर्स में आपको एक्सप्रेस करना है. तो 12 इज इक्वल टू डैश एंड डैश. तो आप कौन से दो प्राइम नंबर्स को ऐड करो कि 12 हो जाए? इट इज सिंपल स्टूडेंट्स. इफ यू add 5 and 7, these both are prime numbers and the addition of these both number will be 12. And what about 18? So when you students add 5 with 13, then you will get 18 and these both are prime numbers. So these are easy students. Now we will come with next two questions. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा ये लास्ट सेटअप है और लास्ट क्वेश्चन से हमारे 4th, 5th और 6th ऑफ एक्सरसाइज 2.9. ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? कि फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन, मींस जस्ट इसके बाद वाले नंबर्स जो प्राइम नंबर हो, जस्ट इससे पहले, जस्ट इससे छोटे. ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन दिस. 24 से छोटे प्राइम नंबर आपको लिखने हैं. ठीक है, जो उसके बाद में प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए. ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो इससे छोटा हो, इससे छोटा जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 23. स्टूडेंट्स 36 से पहले जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स वो होता है 31. 41 से पहले जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स वो आता है 37. ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपको याद ही रखना. So students, find the least prime number which is greater than. अब आपको छोटा, इससे बड़ा, इससे जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है, आपने 20 के छोटे लिखे थे, 36 का छोटा लिखा, 24 का छोटा लिखा, अब 28 से बड़ा और जस्ट इसके बाद वाला प्राइम नंबर आपको लिखना है स्टूडेंट्स. 28 के बाद वाला जस्ट प्राइम नंबर स्टूडेंट्स 31 होता है. 31. ओके, 48 के बाद और जस्ट स्टूडेंट्स होगा 43, वो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है. उसके बाद 77 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स वो होता है 79. ओके, तो दीज आर द प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटेस्ट बट लेस देन दिस एंड विच आर लीस्ट बट ग्रेटर देन दिस. ठीक है, नंबर से बड़ा प्राइम नंबर और नंबर से छोटा प्राइम नंबर आपको लिखना. अब है क्वेश्चन नंबर 6 कि हम प्राइम नंबर्स के डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं. स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखा था दो प्राइम नंबर्स के सम के बराबर. अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दो प्राइम नंबर्स के डिफरेंस के बराबर. सो स्टूडेंट्स 4, हाउ वी कैन राइट? वी कैन राइट 7 minus 3. 7 minus 3 will be 4 and both these numbers are prime. How we can write 10 students? We can write 13 minus 3. 13 minus 3 is 10 and 13 and 3 both are prime numbers. How we can write 15 students? 17 minus 2. 17 minus 2 will be 15 and 17 and 2 both are prime numbers. तो इस तरीके का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स रहा है 2.9 में, टोटली बेस्ड अपॉन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वीडियो में और हमारा चैप्टर और फर्स्ट टर्म यही समाप्त होता है सिलेबस. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रैक्टिस शीट. प्रैक्टिस शीट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का हम रिवीजन करने वाले हैं. तब तक के लिए गुड बाय.